एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा आईसीएसई बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर। तो तुम में से कुछ लोग मेरे को कॉमेंट्स करके ये बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो वी आर फाइनली बैक। यहाँ पर हम सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रिविजन सीरीज। तुम्हें पता होगा कि हमने रिसेंटली आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए एक रिविजन सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें कि हम हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर देखो, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस तुम बोल सकते हो, या फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स या फिर बायोलॉजिकल टर्म्स है जो कि तुम्हें पूछा जाता है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। ये सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज the fluid found between the membranes of the heart. So what is this fluid called? It is called pericardial membrane. It is called pericardial, C-A-R-D-I-A-L, pericardial membrane. So it is pericardial membrane. Next one, that is question number 2, the enzyme which converts fibrinogen to fibrin. So it is thrombin. Thrombin is the enzyme. Next, question number 3, name the mineral element essential for the clotting of blood. So what is this mineral element? It is calcium. You can write CALCIUM. You can write the full spelling. This is the short form of calcium. Next, question number 4, the blood vessel which supplies blood to the liver. So this blood vessel is hepatic artery. So hepatic artery होगा question number 4 का आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या है? इट इज़ योर आरबीसी। नाउ यहाँ पर पूछा है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, सो इट इज हेमोग्लोबिन। सो हेमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, हेमोग्लोबिन। Now next is question number 6, the compound formed when hemoglobin combines with carbon dioxide in blood. So it will be कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार तुम्हारा बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। सो डेफिनेटली फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। सो एंश्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस, ensure that you know the answers of all these questions. Next is question number 7, the process by which white blood cells engulf bacteria. So what is this process called? It is phagocytosis. Phagocytosis. Next, question number 8, the protective covering of the heart. So what is the protective covering of the heart called? It is known as pericardium. So it is pericardium. Next, question number 9, the sound produced when the atrioventricular valves close in the heart. So this sound is lub sound. So it will be L-U-B-B, lub. Next, question number 10 now. Question number 10, the soluble protein present in blood plasma responsible for blood clotting. So this soluble protein is fibrinogen or fibrinogen. So fibrinogen. Next, question number 11, the vein that carries oxygenated blood. So this vein is called pulmonary vein. Vein that carries oxygenated blood is pulmonary vein. Next is question number 12, blood vessels carrying blood to the left atrium. So this is also pulmonary vein again. So remember the answer for both the questions. Next is question number 13 now. Question number 13, cellular components of blood containing hemoglobin. So cellular components, it will be RBCs, or you can also write erythrocytes. You can write erythrocytes. Next, question number 14, the relaxation phase of the heart. Relaxation phase of the heart, it is known as diastole. It is diastole. And here now the last question, that is question number 15, squeezing out of the white blood cells from the capillaries into the surrounding tissues, it is known as diapedisis. अब देखो यहाँ पर एक चीज़, diapedisis, PEDESIS,
डायापेडिसिस। यहाँ पर देखो एक चीज़ तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन है, रिवर्स वे में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि तुम्हें यहाँ पर आंसर दिया है, तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्क्ड व्हाट इज डायापेडिसिस और डिफाइन डायापेडिसिस। सो तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBCs फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज इज नोन एज डायापेडिसिस। सिमिलरली यहाँ पर तुम्हें पूछा जा सकता है व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पर फैगोसाइटोसिस का डेफिनेशन पढ़ लेना, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आता है। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें कुछ एग्जैक्ट लोकेशन टाइप पूछा जाता है, क्वेश्चंस फंक्शंस पूछा जाता है, तो सारा चीज़ का तुम्हें फंक्शंस पता होना चाहिए। लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन, तो इस तरीके से फंक्शंस का क्वेश्चन देख लेना। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चंस है, लाइक यहाँ पर तुम्हें पूछा जा सकता है एग्जैक्ट लोकेशन, हम डिस्कस कर रहे थे, तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ यहाँ पर तुम्हारा बाइकस्पिड वाल्व, देन ट्राइकस्पिड वाल्व, तो ये सारा चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हें देख लेना है अच्छे से बुक से। अब यहाँ पर देखो कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस है जो कि तुम्हें करना है, तो यहाँ पर 3 गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जिसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाए ये सारा क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गिव रीजन में, फर्स्ट वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैज़ अ थिकर वॉल देन द राइट वेंट्रिकल। सो यू हैव टू गिव रीजन फॉर दिस। सो इसका यहाँ पर रीजन क्या होगा, दिस इज बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल इट पम्प्स ब्लड around the entire body, whereas the right ventricle it pumps blood only to the lungs. So this is the reason why the left ventricle has a thicker wall as compared to the right ventricle. So this is the answer. You can simply write it in your own words. Next is question number 2, give reason type question. Carbon monoxide is dangerous when inhaled. So why is this gas dangerous? So you can write carbon monoxide, it is a dangerous gas because it can easily combine with hemoglobin which is present in the RBCs. This is the respiratory pigment which is present in the red blood cells. So it can easily combine with that and it can form carboxyhemoglobin. And this can cut down the supply of oxygen to the different tissues in our body. So this is why it is very dangerous when inhaled. तो ये तुम बनाकर अगेन आंसर लिख सकते। नाउ नेक्स्ट गिव रीजन टाइप क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट गिव रीजन टाइप क्वेश्चन। वाई मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स और RBCs वाई दे लैक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो वाई इज इट सो, सबसे पहले तुम लिख सकते हो न्यूक्लियस का, मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स दे लैक न्यूक्लियस to increase the surface area for absorption and transport of oxygen to tissues. And why mitochondria is absent, you can write mitochondria is absent to prevent the consumption of oxygen and so that all the oxygen is transported equally. So this is important. यहाँ पर देखो अब कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि तुम्हें पूछा जाता है। यू आर आस्क्ड टू लेबल द डायग्राम। यहाँ पर तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्राम्स दिया रहता है, तुम्हें यहाँ पर लेबल करना पड़ता है पार्ट्स, तो तुम्हें उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि यहाँ पर तुम्हें फंक्शंस पता हो सारे पार्ट्स का। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ऑफ ब्लड स्मीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार यहाँ पर तुम्हें दिया जाता है ब्लड स्मीयर का मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखो मेरा ये सजेशन है कि तुम यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना, इसको प्रैक्टिस भी कर लेना ब्लड स्मीयर का डायग्राम को, बिकॉज यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर तुम्हें मतलब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है, लेबल कर ड्रॉ करने के लिए, तो तुम यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर लेना, लेबल्स भी देख लेना, लेबलिंग। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर हार्ट का डायग्राम। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर ऑलरेडी दिया रहता है, तुम्हें यहाँ पर लेबलिंग आना चाहिए, तो लेबलिंग प्रैक्टिस करना है, फंक्शंस पता होना चाहिए सारे पार्ट्स का। नेक्स्ट है तुम्हारा ब्लड वेसल जो कि तुम्हारा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी का यहाँ पर डायग्राम रहता है, तीनों एक साथ आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर तुम्हें आइडेंटिफाई करके ये लिखना पड़ता है कि मतलब कौन सा आर्टरी है, कौन सा वेन्स है, कौन सा कैपिलरीज है, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर डिफरेंशिएट टाइप क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो तीनों में क्या डिफरेंसेस है वो पता होना चाहिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। एंड लास्टली यहाँ पर तुम्हारा पाथवे ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो कि तुम्हारा बुक में एक पाथवे दिया हुआ है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, उसको अच्छे से गो थ्रू करना, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शंस सर्कुलेटरी सिस्टम से कवर हो जाएगा। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट मतलब डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट टिप्स टू प्रिपेयर फॉर बायो, उसमें हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितना भी तुम्हारा सिस्टम वाला चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इवन योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट मीन्स यहाँ पर तुम्हारा एक्सक्रीशन,
ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो सारा सिस्टम वाला चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ज़्यादा वेटेज है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।